عبادت ایک ایسی ہے کہ جس سے کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے شادی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار آدمی بننا چاہتا ہوں، شادی نہیں کریں۔ دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، مطلب شادی نہیں کرنا اور لوگوں سے ملنا جلنا نہیں۔ یہ تھاٹ اور یہ فکر، یہ نظریہ اسلام کے مخالف ہے، اپوزٹ ہے۔ اسلام ایک نیچرل دین ہے، طبیعی دین ہے، فطری دین ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے نیچر کو اللہ ہی سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو ہمارے طبیعت کو ملنے اور جلنے والی باتیں ہی اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر بتایا۔ دیکھیے، کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، ہم ان کے جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن کوشش کریں گے نبی سے تھوڑی تھوڑی قریب ہونے کی عبادت کے درجات میں۔ تو صحابہ نے، کسی نے کہا کہ میں جو ہے رات میں سوؤں گا نہیں، رات میں تہجد پڑھوں گا، نیند میں قربان کروں گا تاکہ میں نبی کی جیسی عبادت کرنا شروع کر دوں۔ میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں، ہر دن روزہ رکھوں گا۔ کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کرنے سے مجھے عبادت میں ڈسٹربینس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کو بلایا، دیکھیے کہ تم سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں دن میں کھاتا پیتا بھی ہوں، اور سیم ٹائم پہ میں شادی بھی کرتا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو میرے دوستوں، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم، کہ تم شادی نہیں کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اور میرے سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو فالو نہیں کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اگر تم کو قریب ہونا ہے تو میری سنت کو فالو کرو، اور میری سنت یہ ہے کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، شادی سے میں اپنی فیملی لائف بھی گزارتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر دعا کیا، کیوں عبادت ہے یہ سمجھنا ہے ہم کو، کہ اس آدمی کے لیے دعا کیا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے۔ کون دعا کر رہے ہیں میرے لیے، تمہارے لیے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے، اس آدمی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہے نا، کہ جو رات میں اٹھتا ہے، رات کے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، سونے جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے، اپنے بیوی کو اٹھاتا ہے، یا اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جو رات میں اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ تو یہ ساری عبادتوں کا جو موقع شادی میں ملتا ہے، یہ عبادتوں کا موقع، اب شادی نہیں کریں گے تو یہ موقع، یہ اپرچونٹی نہیں ملے گی۔ اور عبادت اس لیے بھی ہے کہ اس میں اولاد پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اولاد کی تربیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب شادی نہیں کرو گے تو بچے نہیں ہوں گے، بچے نہیں کریں گے تو بچوں کی تعلیم تربیت، ان کو پالنے پوسنے پر جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو اللہ کے وعدے ہیں، جو ریوارڈ سے اللہ کے پاس۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من عال ثلاث بنات، جو آدمی، جو مسلمان 3 لڑکی بچیوں کی، فیمیل بچیوں کو جس کو اللہ نے دیا، فأدبہن وزوجہن، ان کی اچھی تربیت کیا، ان کی نرچرنگ اچھی کیا، اور ان کو شادی کر کے دیا، وأحسن الیہن، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، ان کے ساتھ انجسٹس نہیں کیا، فلہ الجنہ، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ جنت کی ہم کو گارنٹی اللہ رب العالمین نے کس میں دیا ہے، کہ بھائی تم شادی کرو، بچے کرو، بچوں کو پالو پوسو، ان کی تربیت کرو، ان کی اچھی تربیت کرو، اور تم جنت کی ٹکٹ اس دنیا ہی میں گویا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مرضی سے لے لو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، کن لہ الستر من النار، وہ بچیاں جو آپ کو ہوں گی نا شادی کرنے کے بعد، وہ تم کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہوں گی، جہنم اور آپ کے بیچ میں وہ پردہ ڈالے گی۔ سبحان اللہ، یہ سب اپورچونٹی شادی جیسی عبادت میں ہم کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت ہے۔ جب ہم عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دوستو نوجوانوں سے غور کرنا میری بات کو، میں بہت ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ جا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ ایکسٹرا کو بولتے ہیں کہ ووکیبلری یا سینٹینسز یوز نہ کروں۔ جب ہم نے شادی بولا، عبادت بولا، تو عبادت جیسے مثال کے طور پہ نماز بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ تو نماز میں بہت سارے طریقے کی نماز ہے۔ ایک نماز ہے جو کہ فرض ہے، جیسے 5 ٹائم کی نماز ہے۔ ایک نماز ہے جو کہ مستحب ہے، جیسے وتر کی نماز ہے، یا جو رات و دن میں فرض نماز کے علاوہ جو 12 رکعت پڑھتے ہیں وہ نماز ہے، نفل نماز ہے۔ اور کچھ نماز ایسی ہیں جو سنت ہے نا۔ تو جب عبادت جب بولتے ہیں تو اس کے الگ الگ درجات ہیں،
उसके अलग अलग स्टेटस हैं, ऑर्डर्स हैं, उसके अलग अलग रूल्स हैं, अहकाम हैं। जो रूल्स हैं कभी कभी अलग अलग उसके दर्जात होते हैं, कभी वो कंपलसरी होता है, कभी रिकमेंडेबल होता है, कभी परमिशेबल होता है, कभी क्या बोलते हैं कि अवॉइडेबल होता है, कभी कभी वो क्या बोलते हैं कि हराम होता है, यानी जिसको जो प्रोहिबिटेड होता है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात आपके लिए, शादी भी ऐसा ही है, शादी भी ऐसा ही है। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि शादी वाजिब है, कंपलसरी है, फर्ज है। किस पर? और एक दूसरा है शादी रिकमेंडेबल है, मुस्तहब है। किस पर? शादी मकरूह है। किस पर? शादी हराम है कुछ लोगों पर। अरे हराम भी है शादी किसी लोगों पर, वो कब? ये मैं आपको हल्का सा बताऊंगा। वाजिब का मतलब तो पहले समझ लो, वाजिब और फर्ज किसे कहते हैं। थोड़ा सा फर्क बाज़ उलमा के पास है, लेकिन तकरीबन फर्ज और वाजिब दोनों एक ही चीज है। फर्ज या वाजिब जिसको करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, ऑर्डर किया है, जिसके करने पर अजर है और नहीं करने पर गुनाह है, जिसके करने पर अजर है और नहीं करने पर गुनाह है, पनिशमेंट है, तो उसको बोलते हैं कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, फर्ज, वाजिब। शादी ये निकाह कभी कभी वाजिब भी होता है। मिसाल के तौर पर दो कंडीशन है उसके लिए। किसी के पास एक कंडीशन ये है कि एक ऐसा नौजवान जिसके पास माल है, वेल्थ है और फिजिकल फिटनेस है, एक कंडीशन, और उसको जिना में पड़ने का डर है। बी क्लियर, माल दौलत है और फिजिकल फिटनेस भी है, और वो रहते हुए भी उसको जिना में, यानी अपने डिजायर को, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो जिना की तरफ जाने का डर है, तो ऐसे आदमी पर निकाह करना वाजिब है। निकाह नहीं करेगा, पैसा भी है, ताकत भी है, फिजिकल फिटनेस भी है, और तू हराम में पड़ने का डर है, और निकाह नहीं करेगा तो अल्लाह पनिश करेगा, अल्लाह पनिश करेगा। आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, आप प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते, आप डिले नहीं कर सकते, ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, आप वेट नहीं कर सकते। आपको अव्वल मौके पर फर्स्ट प्रायोरिटी देना है इंसान को कि मैं शादी करके, ताकि मेरे पास ताकत है, मुझ पर वाजिब हो गया है, मैं गुनाहों से बचना है मुझे, तो ऐसे में शादी उस आदमी पर वाजिब है। शादी जब वाजिब है, जब यहाँ पर एक सुनते हैं तो अब तुम्हारे जहन में एक सवाल आ रहा है, किस पर वाजिब है? मेरे अब्बा पर वाजिब है शादी कराना, या मुझ पर खुद पर वाजिब है? उलमा इकराम ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त बहस किया है इल्मी और फिक़ही एतबार से। एक बाप पर वली जो होता है, जिसको वली बोलते हैं, बाप पर वाजिब नहीं है कि बेटे की शादी करा दे। हाँ, खाना पीना, पढ़ाना, कपड़े टुकड़े के लिए देना, वो भी वाजिब है, और उलमा के एक कौल के मुताबिक वो मेच्योरिटी तक वाजिब है, यानी बालिग होने तक उस पर कंपलसरी है। हाँ, मोस्ट रिकमेंडेबल है, बाप शादी करके दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपलसरी बाप पे नहीं है। लड़के पर वाजिब है, तब तो वही तो कंडीशन है ना। अगर तुम्हारे पास वेल्थ है, वेल्थ है मतलब किसके पास? तुम्हारे बाप के पास या अब्बा के पास नहीं, तुम्हारे पास, जो तुमने कमाया हो या तुमको जो विरासत में मिला हो, विरासत में जो माल मिला है तुम्हारा है, और तुम्हारे पास फिटनेस है, तो इट इज ऑब्लिगेटरी दैट यू गेट मैरिड, तो आपको शादी कर लेना है। दूसरा, इसके बारे में बहुत सारी आयतें भी उलमा इकराम ने बयान किया है, वलियस्तअफिफिल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, सूरह नूर आयत नंबर 33। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। मुस्लिम की रिवायत है, ऐ नौजवानों, तुम में अगर बा है, यानी बा मतलब ये दो ताकतें, कौन सा? फिजिकल और वेल्थ की ताकत अगर तुम में है, फलयतज़व्वज, तो वो शादी करे। वमन लम यस्तती, अगर ताकत नहीं है तुम्हारे पास, फिजिकल फिटनेस नहीं है, तो तुम रोजा रखे, रोजा रखकर अपने डिजायर को मारे। ठीक है? तो यहाँ पर हमको मालूम पड़ा कि इस तरीके से वाजिब हो जाता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे नौजवान आजकल, उनके पास पैसा है, दौलत है, खुद का कमाया हुआ, लेकिन शादी को वो लोग डिले कर रहे हैं, और गुनाह में पड़ने के इम्कान हैं, और गुनाह में नाउजुबिल्लाह पड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वाजिब है। अब दूसरा जो इसका ऑर्डर है, हुक्म है, वो मुस्तहब। मुस्तहब किसके लिए है? कुदरत है, यानी वेल्थ और हेल्थ है उसके पास, लेकिन जिना में पड़ने का डर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, वेल्थ और हेल्थ है, जिस्मानी ताकत भी है, माली ताकत भी है,
लेकिन जिना में पढ़ने का अगर डर नहीं है तो उसके लिए वाजिब नहीं है, उसके लिए मोस्ट रिकमेंडेबल है, ज्यादा अजर है, मुस्तहब है कि वो शादी करे। शादी में डिले करना उसके लिए अच्छी बात नहीं है। और एक होता है मकरूह, आप सुनते हैं ना, ये मकरूह है, ये जो है नॉट रिकमेंडेबल है, इससे बचना ज्यादा अफजल है, इसको बोलते हैं मकरूह। ठीक है, वो किस आदमी के लिए मकरूह है? शादी करना बेहतर नहीं है भाई तेरे लिए, तू शादी नहीं करना अच्छा है तेरे लिए, शादी करेगा तो अच्छा नहीं है तेरे के लिए, ये बोलना, ये मतलब है उसका। तो वो किसके लिए? जिसके पास अपने, उसके पास माली और जिस्मानी दिमागी तौर पर उसको डर हो, माली एतबार से और जिस्मानी एतबार से उसको डर है, फियर है उसको कि वो कहीं अपनी बीवी के राइट्स अदा नहीं कर सकेगा, डाउट है उसको, डाउट, यकीन नहीं, हाँ यकीन बाद में आ रहा है, डाउट है, तो उसके लिए मकरूह है। डाउट समझते हैं ना, डाउट में एश्योरेंस नहीं होता है, अगर थोड़ा भी डाउट है उसको तो उसके लिए मकरूह है, वो कंसल्ट करे उलमा से, जो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करे, डाउट से बाहर आए, उसके बाद में जो है अपने शादी के लिए आगे बढ़े। और शादी करना कभी कभी हराम है, जबकि उसको ये मालूम हो कि मैं, हेल्थ भी मेरे पास ठीक से नहीं है, वेल्थ भी मेरे पास ठीक से नहीं है, शादी के बाद मैं अपनी बीवी के राइट्स को अदा नहीं करने का उसके पास डाउट नहीं, बल्कि उसको मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो उसके पास, यानी गालिब गुमान, यकीन है तो भी, और मैक्सिमम उसको जा रहा है, मतलब मोर देन 50% उसको ये मालूम हो रहा है कि मैं हक नहीं अदा कर सकता, या 100% उसको मालूम है कि मैं तो हक अदा नहीं कर सकता, माल मेरे पास नहीं है, मैं खर्चे के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं बीवी को खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए मैं खर्च बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसा है, आप इसकी मिसालें आपके पास हो सकती हैं। और जिस्मानी एतबार से किसी की फिजिकल फिटनेस नहीं होती, उसको मालूम है कि मैं जो है, मेरे में डिसऑर्डरिंग्स हैं, मेरे पास डिसऑर्डर्स हैं, मेरे पास इलनेस है, कुछ बीमारियां हैं मेरे पास, जो मेरे मेंटली भी हो सकती हैं, फिजिकली भी हो सकती हैं। तो और उसको पूरा इस बात का मैक्सिमम प्रोबेबल, जो क्या बोलते हैं, उसको मालूम है कि मैं इसमें रियली मैं हार जाऊंगा, मुसीबत मुझे आएगी उसको। ओके, तो ऐसे आदमी के लिए शादी करना हराम है। और यहाँ पर दिमागी बीमारियां भी हो सकती हैं, मेंटली स्ट्रेस रहना, या जो है अलग अलग तरह के बीमारियां, या क्या बोलते हैं कि ऐसी जहनी बीमारियां रहना जो डॉक्टर के अंडर में जो रह रहा है, और जिसकी वजह से उसको मालूम है कि मैं बीवी के ऊपर भी गुस्सा कर सकता हूँ, बीवी के ऊपर भी शक कर सकता हूँ, बीवी को मैं हाइपर टेंशन में आकर, हाइपर जो है गुस्से में आकर मैं मार सकता हूँ, है ना। हमारे तो जूम क्लासेस है सच होते। जो हर तरह की बीमारियां हो सकते हैं, चाहे वो माली एतबार से परेशानी हो, चाहे जिस्मानी एतबार से परेशानी हो, चाहे वो दिमागी एतबार से परेशानी हो, या जिनसी एतबार से उसको परेशानी हो, तो उसकी बात आएगी जिनसी जिनसी वगैरह कैसे परेशानी आती है, चल आने वाले मैं क्लास में बताऊंगा। तो ऐसे आदमी पर वो शादी करना बहुत जो है मुश्किल। तो कभी कभी कहा जाता है ना, देखिए यहाँ पर मैं इसलिए इस बात को फोकस कर रहा हूँ ज्यादा, बहुत सारी माएँ होती हैं, उनको मालूम है कि मेरा बेटा अनफिट है, ओके, उसको बचपन से वो अनफिट है, ओके, बचपन से कुछ दवाइयाँ ले रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर इनफर्टिलिटी है, या इम्पोर्टेंट की तरफ वो जा रहा है, नामर्दानी की तरफ जा रहा है, या जो है वो बात नहीं करता, किसी से नहीं है, गुस्सा हो जाता है, खुद के मसाइल को हल नहीं कर सकता, लड़की को तलाश करते हैं, चलो भाई शादी के बाद सही हो जाएगा। सुभान अल्लाह, यहाँ पर इसमें तफसील है, मैं आगे बताऊंगा। ये ट्रायल एंड एरर जो बच्चों पे करते हो, अच्छी लड़कियों को अच्छे, वो भी अच्छी अच्छी लड़कियां लेके आते हैं, हाँ, इतना रहता है कि वो लोग गरीब रहते हैं, और बाद में बड़े से बड़े खतरनाक नताइज आते हैं कि ये लड़का दिमागी एतबार से फिट नहीं है, जिस्मानी एतबार से फिट नहीं है, और वो लड़की अपने डिजायर को पूरा करने के लिए गलत रास्ते अख्तियार कर रही है, या तलाक की नौबत आ जाए। तो ये हो गया, मैं शादी इबादत है तो क्यों है, और उसके अलग अलग स्टेटस और ऑर्डर्स क्या है ये बताया।